All right, very good morning to all of you. Today is definitely an important session, and this session is all about campus placement guidance, and specifically for people who are in 24-26 batch of MBA Finance. As you know that आप लोगों के जो campus के placements हैं, right, that will be starting shortly, most likely in this month itself. काफी companies के notifications आ चुके हैं. और अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी ही ये कैंपस प्लेसमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे. राइट, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त. राइट, टुमारो सितंबर विल बिगिन, एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर मोस्ट लाइकली द टॉप मोस्ट कंपनीज जिनका आपको नॉर्मली इंतजार रहता है, वो कंपनीज सितंबर में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगी. तो ये जो सेशन है स्पेसिफिकली हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग प्राइमरली तीन पॉइंट्स को कवर करेंगे. पहला पॉइंट हम लोग जो कवर करेंगे दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो. कैंपस प्लेसमेंट का एक जो ओवरऑल सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो किस तरह का होता है. सेकंड, वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डेलॉयट एंड आर्सिशियम, क्योंकि ये दो कंपनीज होती हैं जो स्टूडेंट्स नॉर्मली प्राइमरी लेवल पर टारगेट करते हैं. और थर्ड, जो हम लोगों का टारगेट रहेगा आज वो रहेगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह के राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं कंपनीज की, और आपकी प्रिपरेशंस किस तरह की है. राइट, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं इस पर्टिकुलर सेशन में. और व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट यू शुड ट्राई टू नोट डाउन. राइट, आप लोग अगर इसमें इंपॉर्टेंट बातें आज के सेशन में लेकर जाएंगे तो ये आपके कैंपस प्लेसमेंट में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. ठीक है. सो कोशिश करें, पूरा फोकस करें आज के सेशन पे अच्छे से. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे, पास्ट ट्रेंड्स के बारे में बातें करेंगे, और आगे की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन नेक्स्ट कमिंग डेज, कमिंग वीक. राइट. सो बिफोर वी बिगिन, थोड़ा हम लोग जस्ट आई विल गिव यू क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट myself. So my name is Gunjan Shrimal. I'm basically by profession chartered accountant, and also an alumni of IIM Indore. I completed my CA somewhere in 2007 and spent almost 10 years after that working with various corporates. So Apollo, Idea, Bank of America, Axiata, these are some of the companies where I spent first 10 years of my career. And after those 10 years, we started CampRep. CampRep is basically a campus preparations company which help a student in getting their first job. So far, we have helped almost 3,000 plus students in securing their first job, right? So this is a brief introduction about myself. These are some of the companies where we have placed students, right? Now, these companies normally participate. Uh, Normally this is these are those companies which have participated in the previous campus, और उनकी जो पूरी एक डिटेल्ड प्रोसेस है, उस डिटेल्ड प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशंस काफी आसान हो जाएंगी. राइट, सो हम लोग इन सभी कंपनीज के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे. This is our past students placements, right? We have been conducting these sessions from 2019, right? So this has been our sixth year, or in 6 years, we have realized that it is something very important because core finance placements are very less. You know that getting a core finance placement is definitely a very very challenging task, right? तो हमको कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्टार्ट करना है. This is our placements right from 2022, 21, 24, 24, 26. Right, Deloitte, we have placed more than 50 students. Almost 50 students of ours are currently working in Deloitte at various positions. Arcesium, which is a desired company, our students have been working for Arcesium also. So they have shared their inputs, and based on all these inputs, right, we have prepared our this entire plan. Right, so this is primarily about what we do, and if I can little bit understand from your side, if you can tell me like which college you are basically from, right? So it would be great that to start, so that we will speak a little bit about college specific things also, right? So if you can just mention in the chat box that this is your college,
so that we can specifically talk about the companies that would be participating those colleges also. Right, everyone, if they can write. All right, very good. So IMS, DAVV, IMS, okay, Prestige, PIMR, all right, IMS, right, Singhgad Institute of Management, Pune, okay, very good. PIMR, all right, Prestige Institute, all right. Yeah, everyone, if they can write, it would be great. So we will straight away come to some of the primary questions. Definitely questions related to core finance jobs, right? So आज हम लोग जो बातें करेंगे उसमें ये points भी cover होंगे. That how easy or difficult is it to get core finance jobs, right? Then if you are from non-commerce background, right? कई students होते हैं जो non-commerce background से होते हैं. उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे? इक्विटी रिसर्च, राइट? आप लोगों ने इंटर्नशिप्स जिस भी फील्ड से करी है, क्या उसी फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, राइट? एंड देन सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो तीन पार्ट हैं जो आज आपको समझने. पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री. देखो, जब तक आप इंडस्ट्री के बारे में नहीं समझोगे, राइट, तब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि हम लोगों को किस टाइप के जॉब्स मिलने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इट इज अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री. सेकंड इज लिटिल बिट अबाउट सेल्फ क्लैरिटी एंड थर्ड इज कैंपस प्रिपरेशन. सो आज मैं इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ा सा कम बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने अब कैंपस आ चुका है, ठीक है? तो अब आपको ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंडिंग आएगी किस तरह की कंपनीज आ रही है, ठीक है? सो हम लोग आज ज्यादा बात करेंगे कैंपस की तैयारी की, ठीक है? सो आई विल जस्ट टेक 5 minutes फॉर एक्सप्लेनिंग यू द काइंड ऑफ इंडस्ट्री, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी गेटिंग, एंड देन स्ट्रेट अवे विल कम डाउन टू द कैंपस प्रिपरेशंस, ठीक है? सो इफ वी understand the industry and the companies that are going to be participating, right? So normally अगर हम बात करें जो colleges हैं, जो अभी आप जिन colleges में हैं उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें primarily जो highest paying company है that is DE Shaw, RCSM. RCSM normally 15 lakhs per annum का पैकेज ऑफर करती है, राइट? एंड दिस इज द कंपनी विच नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल डिजायर्स अबाउट, ओके? तो उसके बारे में आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे. इसके अलावा HDFC बैंक, डेलॉयट यूएसआई, अलायंट, विप्रो ब्लैकस्टोन, बजाज हाउसिंग, रीनस लॉजिस्टिक्स, HFFC, अमूल, S&P ग्लोबल, टाटा AIG, राइट, ICICI प्रूडेंशियल, बंधन बैंक, डेसिमल पॉइंट, राइट? सो ऐसी कंपनीज हम लोगों ने पास्ट में देखी है जिन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया कॉलेजेस में, ठीक है? सो इन कंपनीज के लिए अब आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रेडी रखनी है, ठीक है? ये बात आज हम लोग क्लियर कर लेंगे. ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी, राइट? फर्स्ट इज कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च, राइट? एक कैटेगरी ये होगी. दूसरी कैटेगरी होगी फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और हेज फंड आ गए. इसी में आरसीएम इसी में फॉलो करते हैं. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स जैसे कि डेलॉइट, ये एक और कैटेगरी होती है. उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस, आईटी कंपनीज एंड सेल्स रिलेटेड वर्क. ऑब्वियसली सेल्स में तो आप जाना प्रेफर नहीं करोगे, that's why you are attending this particular session, right? लेकिन ये particular 5 categories of companies you will find in your campus, right? Specifically, if we'll talk about these companies, so these companies are definitely offering very well profile also. देखो, पैकेज तो अपनी जगह पर है कि पैकेज तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन पैकेज के साथ जो प्रोफाइल्स हैं, राइट, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग गुड प्रोफाइल्स. फॉर एग्जाम्पल डी शो इज ऑफरिंग हेज फंड अकाउंटिंग, राइट? हेज फंड अकाउंटिंग का उनका रोल होता है. और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, दे बेसिकली ऑफर पोजीशन समवेयर इन हैदराबाद, राइट?
एंड यहाँ से आपको बाकी जितने भी उनके फंड्स होते हैं उन फंड्स की अकाउंटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये काम करना होता है। ठीक है, इट्स अ फैंटास्टिक रोल दैट यू शुड डेफिनेटली एस्पायर फॉर। इसकी एलिजिबिलिटी को लेके क्वेश्चंस होंगे आपको कि इसमें क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी स्पेसिफिकली बात करते हैं। सिमिलरली डेलोइट यूएसआई की बात करें तो डेफिनेटली हर साल ये कंपनी पार्टिसिपेट करती है और दे हायर गुड नंबर ऑफ पीपल, राइट। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो हायरिंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो डेलोइट की होती है। इसके लिए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर समथिंग लाइक दिस। एस एन पी ग्लोबल, यस, ये नॉर्मली थोड़ा सा लेट पार्टिसिपेट करती है। जैसे अभी आपके कैंपस सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखो सितंबर और अक्टूबर ये दो क्रूशियल मंथ रहने वाले हैं आपके लिए, राइट। एंड अक्टूबर में भी बिफोर प्री दिवाली, राइट, दिवाली के आसपास कैंपस प्लेसमेंट जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हॉलीडेज एंड ऑल दैट। तो आपके लिए क्रूशियल मंथ है सितंबर एंड मिड ऑफ अक्टूबर। मिड ऑफ अक्टूबर से ये एक्टिविटीज कम हो जाएंगी और मे बी इट विल अगेन रिज्यूम फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर फर्स्ट वीक, राइट। फिर नवंबर फर्स्ट वीक और दिसंबर यहाँ आपको कुछ कंपनीज मिलेंगी, राइट। ये पीक टाइम होता है दिसंबर तक। अगर आपका दिसंबर तक प्लेसमेंट हो जाता है तो आप काफी सेफ हो। जैसे ये साल खत्म होगा उसके बाद आपको इनसिक्योरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो कोशिश ये करना है कि हमको फर्स्ट फेज जो है बेसिकली ये जो अप टू दिसंबर वाला फेज है उसमें भी खास तौर पर सितंबर में जो कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि ये इनकी क्लैरिटी पूरी होती है, राइट, दे ऑलवेज पार्टिसिपेट। तो जो कंपनीज श्योर शॉर्ट है जो हर साल पार्टिसिपेट करती हैं उसकी पूरी तैयारी रखिए। उसके अलावा बाद में जो कंपनीज आती हैं वो किसी साल आती है किसी साल नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर बी एन वाई मेलन आई थी, राइट। सो बी एन वाई मेलन हैज पार्टिसिपेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हर साल नहीं आती है, इस बार आएगी या नहीं आएगी, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। Similarly, if you will see that Grant Thornton, right? Grant Thornton has participated. तो ये कंपनीज कई बार करती हैं कई बार पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, राइट। तो आपको उनके लिए एक मेंटल रेडीनेस रखनी है, लेकिन जो 100% पार्टिसिपेट करी उसके लिए तो जरूर से तैयारी पूरी रखिए, ठीक है। तो ये तीन कंपनीज जो है डी शॉर, डेलोइट एंड एस एन पी ग्लोबल, ये वी हैव सीन दैट इट इज पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली ऑल द इयर्स, ओके। सो इनके जो राउंड्स हैं इन राउंड्स के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में बात कर लेंगे। सो आई होप माय स्क्रीन इज क्लियर। यस, स्क्रीन क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस, स्क्रीन इज क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। सो देखो जो पहला डी शॉ की अगर बात करते हैं तो डी शॉ में प्राइमरली इट इज टेस्ट, राइट। एक टेस्ट होता है जो कि डेफिनेटली बहुत टफ टेस्ट होता है एंड उसके बाद नॉर्मली 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, टेक्निकल और फाइनल राउंड। तो उसमें 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, एक एचआर राउंड होता है, या फिर तीनों ही टेक्निकल राउंड्स होंगे, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डेलोइट यूएसआई की प्रोसेस लंबी है, राइट। सबसे पहले वर्सेंट टेस्ट, वर्सेंट, आफ्टर दैट बीपीटी टेस्ट, एंड देन देयर इज एक्सेल टेस्ट, एंड देन देयर आर डेफिनेटली इंटरव्यूज राउंड। एसएनपी ग्लोबल में समटाइम्स इट्स पायोमेट्रिक टेस्ट के बाद एक्सेल टेस्ट, एंड देन देयर आर इंटरव्यूज। समटाइम्स डायरेक्ट इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। विप्रो की बात करें तो डायरेक्ट इंटरव्यूज हुए थे उनके, राइट। एचडीएफसी की बात करें तो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन करा था, ठीक है। बी एन वाई मेलन की बात करें तो उन्होंने एक रिटर्न टेस्ट करा था, उसके बाद जीडी करा था और फिर इंटरव्यूज करे थे। डालूपा करके कंपनी आई थी, उस उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करा था, फिर 2 राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज करे थे। ग्रैंड थॉर्टन की बात करें जीटी की तो टेस्ट करा था, जीडी करा थे और 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे, राइट। तो ये अगर आप देखते हो तो हमें अपनी प्रिपरेशंस तीनों राउंड्स के लिए रखनी है, टेस्ट के लिए भी, जीडीज के लिए भी और पर्सनल इंटरव्यूज के लिए भी। आप सारी कंपनीज में देखोगे कहीं ना कोई मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जीडीज सभी कंपनीज नहीं करा रही हैं, बट फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो 50% कंपनीज जीडीज कंडक्ट कर रही हैं, ऑलमोस्ट 80% कंपनीज टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 100%, नॉट ऑलमोस्ट बट या 100% कंपनीज आर कंडक्टिंग टेक्निकल इंटरव्यूज, राइट। सो ये पर्टिकुलर पास्ट ट्रेंड रहा है। अब इन टेस्ट में और इन कंपनीज में जाने की प्रोसेस क्या है, राइट। तो पहला सबसे पहली बात कर लेते हैं हायरिंग प्रोसेस की, ठीक है।
देखो, हायरिंग प्रोसेस में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है जो आप लोग को समझना है। आप एलिजिबल हो या नहीं हो इन पर्टिकुलर राउंड्स के लिए या इन कंपनीज के लिए, तो उसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर? दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज मार्क्स एंड योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम, राइट? मार्क्स और ग्रेजुएशन स्ट्रीम अगर आपके कंपनी जो डिजायर्ड है उसके हिसाब से है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली डेलॉइट की बात करते हैं, तो डेलॉइट लुक्स फॉर पीपल हु हैव डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, राइट, एंड बीबीए स्टूडेंट्स। सो राइट, जिन लोगों ने बीबीए स्ट्रीम ऑप्ट करी है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है, दैट इज बी कॉम, राइट, दे आर नॉर्मली एलिजिबल। मैं बात कर रहा हूँ डेलोइट यूएसआई टैक्सेशन की। डेलोइट कई बार दूसरे रोल्स के लिए भी आते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रीम अगर डेलोइट यूएसआई टैक्सेशन में ग्रेजुएट कॉमर्स की है, तो ही आप उसके अंदर क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर मार्क्स का। मार्क्स भी कई कंपनीज के फिल्टर्स रहते हैं, जैसे कि एक बार लास्ट टाइम की अगर बात करें, तो आरसीएम ने 75% का क्राइटेरिया एंड मोमेंट पे लगाया था। जिन स्टूडेंट्स के 75% के ऊपर मार्क्स रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, राइट? सो द आंसर इज दैट कांट से, राइट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि उसके पहले वाले सालों में सभी को उन्होंने अलाउ कराया था टेस्ट देने के लिए, और जो भी लोग टेस्ट क्लियर कर पाए थे, उनको उन्होंने फिर फर्दर अलाउ किया था फॉर अपियरिंग इन दिस थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात बिल्कुल क्लियर है क्या सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारा साइंस स्ट्रीम है, तो क्या हम हो पाएंगे, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे? तो अभी मैंने आपको एक ब्रॉडली इन दो कंपनीज के बारे में बताया है। ऐसे ही सभी कंपनीज का पास्ट क्राइटेरिया हम लोग बता सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल एस एन पी ग्लोबल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, राइट? मार्क्स का भी नहीं है और ना ही ग्रेजुएशन स्ट्रीम का है। तो साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनके लिए वो एलिजिबल रहते हैं, राइट? So you have to primarily focus on definitely that the eligibility is getting met, और इस एलिजिबिलिटी को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम कोई सर्टिफिकेशन कर लें जिसके कारण हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन, नो बैकलॉग्स, मार्क्स एंड गैप ईयर। गैप ईयर को लेके कोई कंपनी स्पेसिफिक होती है, कोई कंपनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बातें अब आपको जैसे जैसे कंपनीज आएंगी वो और क्लैरिफाई कर देंगी। लेकिन जो पास्ट ट्रेंड है, पास्ट ट्रेंड को लेकर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं पास्ट ट्रेंड के बारे में डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो you can write it in the chat box also if you have any question, or you can simply unmute yourself and can ask. सो एक क्वेश्चन आया है, सर डू दे सी पीजी मार्क्स ऑल्सो? नहीं, पीजी के मार्क्स नॉर्मली नहीं देखते हैं। पीजी में बस वो ये देखते हैं कि आपका कोई बैकलॉग तो नहीं है। अगर बैकलॉग होता है तो कंपनीज को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बैकलॉग कोई भी मत रखिए, सारे बैकलॉग्स क्लियर करके चलते जाओ। ठीक है, सर मोर टॉक ऑन आर्सेशियम। आर्सेशियम के ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली अभी बात करेंगे, राइट? आर्सेशियम और डेलॉइट, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे। दीज टू कंपनीज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो दिस इज द हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं कैंपस प्रिपरेशंस की। ठीक है, सो कैंपस प्रिपरेशंस की अगर बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ही राउंड्स आपको फेस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ कोर्स रेज्यूमे विल गेट शॉर्टलिस्टेड। आफ्टर दैट टेस्ट। अच्छा, टेस्ट में कितने टाइप के टेस्ट हो सकते हैं? सो एप्टीट्यूड टेस्ट डेफिनेटली, इंग्लिश टेस्ट, एक्सेल टेस्ट, अकाउंटिंग टेस्ट, वर्सन टेस्ट, एंड सम काइंड ऑफ ऐसे राइटिंग ऑल्सो। सो टेस्ट बहुत तरह तरह के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही टेस्ट एप्टीट्यूड हो या सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड हो, राइट? इट वेरीज अ लॉट।
राइट? तो वी विल लिटिल बिट टॉक अबाउट दैट। जीडीज के बारे में तो आप समझते ही हो, ग्रुप डिस्कशंस, राइट? अच्छा, ये जीडीज कई बार ऑनलाइन भी हो जाते हैं और कई बार ऑफलाइन भी होते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? लास्ट ईयर भी हमने देखा था कई कंपनीज ने ऑनलाइन जीडीज भी कंडक्ट कराए थे, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना है। Technical interviews, yes, interview की practice is definitely important here. Technical understanding is certainly which is very very important. और HR round, right? So these are all things that we have to cover. ठीक है, टॉपिक्स की बात कर लो एक बार। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, राइट? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो, डेफिनेटली वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर ये टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए तो आप मान के चलो कि 95% आपकी प्रिपरेशन हो गई है, राइट? 5% तो मैं अपने लिए एक बेनिफिट ऑफ अनसर्टेनिटी रखता हूँ, अदरवाइज अगर मेरे से पूछोगे तो 100% यही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना? अगर आपने कवर कर लिया तो यस, यू आर थ्रू इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज, ठीक है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ सो अब मैं आपको पहले दो पार्ट में इस सेशन को अब हम लोग आगे लेते हैं, ठीक है? पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे डेलोइट के लिए, ठीक है? डेलोइट, एज यू नो, दैट इज बेसिकली दैट हायर्स यू फॉर यूएसआई, राइट? डेलोइट यूएसआई, ओके? किसी को पता है डेलोइट यूएसआई यूएसआई क्या करती है? व्हाट इज यूएसआई? यस, एनीवन? व्हाट इज डेलोइट यूएसआई? टैक्स कंसल्टेंसी, बट यूएसआई का क्या फुल फॉर्म है? यस, लेट्स लिटिल बिट बी पार्टिसिपेटिव, राइट? क्योंकि आप लोग अब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब टाइम आ गया है पार्टिसिपेशन का, ठीक है? तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ओके? ओके, नाउ यू शुड ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग। अगर आप लोगों ने कोई नोट पैड रखा है अपने पास, ठीक है, तो उस नोट पैड को भी पे थोड़ी सी नोटिंग्स भी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल राइट, सो जस्ट अ मोमेंट। या, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? क्लियर है? सो देखो, अगर हम डेलोइट की बात करते हैं, ओके, सो डेलोइट इज कमिंग फॉर यूएसआई। डेलोइट यूएसआई, यूएसआई इज बेसिकली यूएस इंडिया। देखो, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक है डेलोइट इंडिया और एक है डेलोइट यूएसआई। डेलोइट इंडिया is basically handling the clients which are there in India, and Deloitte USI is handling the clients which are based in United States, ठीक है? सो आपके जो कैंपस में कंपनीज आ रही है, दैट इज डेलोइट यूएसआई, यूएस इंडिया, राइट? नाउ व्हाट इज यूएस इंडिया? सो सिंपल बात ये है कि ये कंपनी क्लाइंट्स कौन से हैंडल करते हैं? यूएस के क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, राइट? और वर्किंग कहाँ से होती है? इंडिया से, यानी कि इंडिया में भी कहाँ से? नॉर्मली हैदराबाद से। जो पोस्टिंग होती है वो हैदराबाद में होती है। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? हैदराबाद में। आप हैदराबाद ऑफिस में बैठोगे और बात किससे करोगे? यू विल स्पीक विद ईदर डेलोइट यूएस टीम, डेलोइट की जो यूएस की टीम है उनसे बात करोगे। क्योंकि मान लो कोई भी कंपनी ले लो, मान लो एप्पल, राइट? एप्पल को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो वो किससे कांटेक्ट करेंगे? वो डेलोइट की यूएस टीम से कांटेक्ट करेंगे। और डेलोइट की यूएस टीम क्या करेगी? बैक वर्किंग के लिए डेलोइट यूएसआई से बात करेगी, जहां पर आप बैठे, राइट?
तो ये इसका प्रोसेस है। तो आप डेलोइट यूएसआई में हो और यहाँ पर आप वर्किंग करके डेलोइट यूएस टीम को दोगे और वो फाइनली इनका जो भी रिटर्न फाइलिंग है या इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी वर्क है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो दो बातें आई एम श्योर क्लियर हो गई आपको। पहला, आपका आपकी डीलिंग किन के साथ रहेगी, आपकी डीलिंग यूएस टीम के साथ रहेगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो क्लियर हो गया आपको, दैट इज बेसिकली दैट इट इज अ प्रोफाइल दैट इज इनटू डायरेक्ट टैक्सेशन, राइट, डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, सो ये दो बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब डायरेक्ट टैक्सेशन, तो अब आपको प्रिपरेशंस किस तरह से करनी है, राइट। सो प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि सबसे पहले वो, क्योंकि इंटरेक्शन होने वाला है आपका, तो इंटरेक्शन होगा तो वो क्या चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। सबसे पहली बात, नॉलेज से भी ऊपर ये है कि इंग्लिश अच्छी है नहीं है, क्योंकि उन, एक तो इंग्लिश सही होनी चाहिए और दूसरी इंग्लिश भी उनके एक्सेंट में सही होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज बेसिकली, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट वर्सन टेस्ट। ओके, वर्सन टेस्ट आपने अगर अपने सीनियर से बात करी होंगी, उन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया होगा कि वर्सन टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि वर्सन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो यू विल बी sure shot able to clear this, right. So version test is basically an ability to speak American English, sorry, ability to understand American English, right। बोलना तो हमको हमारे एक्सेंट में ही है, लेकिन आप उनकी बातें समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, दैट इज देयर, राइट। तो यहाँ पर आपको रीडिंग, रिपीटिंग, आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्डिंग, स्टोरी रीटेलिंग एंड ओपन क्वेश्चन, ऐसे करके 6 सेक्शंस होते हैं, राइट। इन 6 सेक्शंस को एड्रेस करना रहेगा। और ये सारे ही जो सेक्शंस होते हैं, इसमें आपको जो एक्सेंट होता है वो एक्सेंट नॉर्मली हमको अमेरिकन एक्सेंट मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक शॉर्ट एग्जांपल लेकर इसकी बात करें तो आपको और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, वैसे आप में से कितने लोगों ने वर्सन टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वर्सन टेस्ट? क्योंकि अब तक काफी लोग कर चुके होंगे, बट स्टिल लाइक जस्ट फॉर मेकिंग एवरीवन अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स। सो केवल एक राउंड ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, राइट। और उस राउंड का भी केवल एक या दो स्टेटमेंट, राइट, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ दिस इज, यू आर गोइंग टू फेस इट। ठीक है, सो इन दिस वन, तो इन दिस वन यू विल हियर अ स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको उसको रिपीट करना रहता है। ये इस राउंड में रहता है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह का स्टेटमेंट आप लोग फेस करने वाले हो, राइट। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। A renowned economist is selected to have a speech tonight at 8. A renowned economist is selected to have a speech tonight at 8. राइट, क्लियर हो आपको? तो ये पर्टिकुलरली रिपीटिंग राउंड है, राइट। इसमें हमको एक एक्सेंट आता है सामने, और वो ऑफ कोर्स अमेरिकन एक्सेंट होता है, और उसको समझ के हमको उसको रिपीट करना होता है। इसी तरह के दूसरे राउंड्स भी होते हैं, राइट। अभी मैं सारे राउंड्स कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए वी ऑलरेडी हैड सेशन अर्लियर। आप चाहो तो मैं यूट्यूब के लिंक्स शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप्स पर, जो अभी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, एंड यू विल डेफिनेटली कैन अवेल दैट, राइट। तो वहां से आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि वर्सन टेस्ट में और कौन से राउंड्स होते हैं और उसको कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? सो ये पहला राउंड है। अब इस राउंड को अगर आप क्रैक कर लेते हो, राइट, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, नेक्स्ट राउंड कौन सा है? नेक्स्ट राउंड इज प्राइमरीली, वंस यू क्लियर दिस, अच्छा, इसमें जो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड आई मीन शॉर्टलिस्टेड एंड सिलेक्टेड, वो भी आप लोग समझ लो।
देखो, डेलॉइट इज समथिंग जो सभी की ड्रीम कंपनी है, ठीक है। हर किसी को स्टार्ट डेलॉइट से करना होता है। बिग फोर लार्ज अकाउंटिंग फर्म्स में आती है, बड़ा ब्रांड होता है। पैकेज ऑल्सो इज फाइन, राइट, समवेयर अराउंड 7.8 lakhs दे इनिशियली ऑफर। वर्क वाइज इन वर्क वाइज इज ऑल्सो गुड। सो इन सभी पैरामीटर्स के कारण द कंपटीशन इज वेरी इंटेंस। और इस कंपटीशन के हिसाब से मैंने देखा है, नॉर्मली out of 200 to 300 students which appear for Watson test, only 30 to 40 students are able to clear it, ठीक है। तो सिलेक्शन रेट इज समवेयर अराउंड 15%, राइट। 80% स्टूडेंट्स में रिजेक्शन हो जाता है, 80%, 70 to 80% स्टूडेंट्स का, राइट। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ द रिजेक्शन? डेफिनेटली दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों को वर्सेंट की आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर डेलोइट यूएसआई। तो एक बात अपने माइंड में आज का जो टेक अवेज है, उनमें जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो लिख लो आप लोग कि वर्सेंट की तैयारी आज से ही करनी है, राइट। कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वर्सेंट की तैयारी आज से करनी है, क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही आगे की बात रहेगी। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ, राइट, तो बाकी कुछ भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। एलिमिनेशन राउंड होता है, ये क्लियर होता है तो आपके सिलेक्ट होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो वर्सेंट टेस्ट में अगर हम बात करते हैं कि इफ देयर आर 30 to 40 स्टूडेंट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, देन इसके बाद सेकंड राउंड होता है, दैट राउंड इज बीपीटी टेस्ट, राइट। बीपीटी टेस्ट इज नथिंग बट बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट। नाम इसका बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, लेकिन इसका बिजनेस की प्रोफिशिएंसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका कनेक्शन प्योरली दो बातों से है। पहला, इसका कनेक्शन है 30 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स, राइट। सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा कनेक्शन है 30 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट। रीजनिंग एंड इंग्लिश ये डेफिनेटली आप लोगों का एक एरिया है जो आपने पहले भी शायद कवर करा होगा ड्यूरिंग एमबीए एंट्रेंस। लेकिन सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, वो आप लोगों को ध्यान से कवर करने रहेंगे, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल आते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, राइट। ऑल्दो टॉपिक्स अगर हम बात करें तो टॉपिक्स डिफिकल्ट नहीं है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से तो फिर वो उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, राइट। आज के सेशन में वी विल ट्राई इन द एंड टू कवर फ्यू क्वेश्चंस, और जो लोग उसके सही आंसर्स देंगे, राइट, वी विल गिव सम काइंड ऑफ prizes also for that, right? So आप लोगों के क्वेश्चंस अच्छे से आप सुनते हैं लास्ट में, और कोशिश करें उनको आंसर देने की, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, ये तीन तरह के टॉपिक्स इसमें आएंगे। उसके अलावा यू विल आल्सो फेस सर्टेन क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही रेशियो एनालिसिस, राइट, रेशियोज के क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेंज बात यह है कि इसमें अभी तक टैक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इन दी बीपीटी राउंड, राइट, जो कि सबसे स्पेशल बात है कि टैक्स की प्रोफाइल है लेकिन टैक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं, हो सकता है अब पूछ ले लिए जाए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो तैयारी करनी है वो इन सब टॉपिक्स की करनी है, ठीक है। रीजनिंग एंड इंग्लिश नॉर्मली जो एमबीए एंट्रेंस के टाइम पर जो लेवल रहता है वही लगभग यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल रहता है। कैट जितना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल पे डिफिकल्टी रहेगी रीजनिंग और इंग्लिश के, राइट। तो बीपीटी टेस्ट जैसे ही आप क्लियर करते हो, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीपीटी टेस्ट के बाद यू विल फाइंड दैट देयर इज नेक्स्ट राउंड, दैट इज एक्सेल, राइट, एक्सेल टेस्ट। ओके, एक्सेल टेस्ट में नॉर्मली आपको 15 एमसीक्यूज आते हैं, राइट, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। अगर आप ये भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू राउंड्स स्टार्ट होते हैं, राइट। और वो इंटरव्यू राउंड्स इज बेसिकली देयर आर 3 राउंड्स which covers technical questions and HR questions, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस रहने वाला है।
राइट, आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं मुझे। पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई आपको? व्हाट कम्स इन एक्सेल एमसीक्यूज? देखो, एक्सेल के जो एमसीक्यूज हैं इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राइट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वी लुकअप, राइट। वी लुकअप फॉर्मूला आपको बताया जाएगा कि लाइक इस फॉर्मूले को में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। वो आपको वी लुकअप के 4 फॉर्मूलेस लिख के दे देंगे। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है वो आप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है, इफ यू हैव टू अराइव एट करंट डेट एंड टाइम, राइट, अगर आपको करंट डेट और टाइम पर अराइव करना है एक्सेल में तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? ठीक है, दिस इज अनदर वन। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्केटनेट? कॉन्केटनेट फंक्शन का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स फंक्शंस? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ रो, राइट? व्हाट इज द यूज ऑफ डॉलर साइन इन एक्सेल, राइट? तो जितना भी वर्किंग नॉलेज है एक्सेल का वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड, तो जो कमांड्स ये लोग डे इन डे आउट यूज करते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो ये कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सेल के फंक्शंस, एक्सेल के शॉर्टकट्स और एक्सेल के बारे में बेसिक बातें, कुछ टर्म्स की इसका यूज क्या होता है, रेंज का यूज क्या होता है। एक जैसे एक याद आया मुझे, एक चीज और पूछी थी उन्होंने, नेम बॉक्स, राइट? नेम बॉक्स कहाँ पर होता है, राइट? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस एक्सेल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आर्सिशियम के बारे में बात करते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन ऑन डेलॉइट? ठीक है, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हम लोग कंबाइंड ले लेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जब हम अभी क्विज करेंगे, उस क्विज में ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरीली दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्सेशियम। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो आर्सेशियम में जाने के लिए एक्साइटेड हैं, राइट? या आप लोग आर्सेशियम की प्रोसेस को समझना चाहते हो, राइट? बिकॉज अगर ज्यादा करके स्टूडेंट्स आरसीएम की प्रोसेस को समझने के लिए रेडी है तो फिर मैं उसको कवर करता हूँ। अदरवाइज हम लोग ने ऑलरेडी उसका एक सेशन अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आई विल शेयर दैट। सो अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्ट में उसके बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जस वॉट एवर यू से, राइट? बोलिए। ऑल राइट, यस, यू टेल अस अबाउट द प्रोसेस, ओके ग्रेट। ठीक है, चलो तो हम लोग शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं आरसीएम की। उसके अलावा भी मैं आपको उनके जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग डिटेल्ड वीडियोस देख लेना। सो देखो, आर्सेशियम इज बेसिकली हेज फंड, आर्सेशियम, और इसी का जो कंपनी है दैट इज डी शॉ, राइट? ये कंपनी डेफिनेटली काफी हाई ऑफर करती है, समवेयर बिटवीन 15 टू 18 एलपीए। जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है दे आर वेरी लेस, राइट? इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है, कैंपस में वो लोग आते हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों को लेकर जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये तो केवल और केवल सीएफए वाले कैंडिडेट्स को ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये देखो हमारे जो स्टूडेंट्स अभी तक सिलेक्ट हुए हैं उसमें
वो उसमें दो स्टूडेंट जो रहे हैं उन्होंने सीएफए नहीं किया था, और एक स्टूडेंट जो है उन्होंने सीएफए लेवल 1 क्लियर किया था। ठीक है। तो जो दो स्टूडेंट है उन दो में से भी एक स्टूडेंट वो थे जो साइंस बैकग्राउंड से थे। राइट। तो कहने की बात ये है कि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। राइट। ये सारी कंपनीज में इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आप लोगों को अगर स्ट्रांग नॉलेज है तो आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो आरसीएम का भी ऐसा ही है। लास्ट टाइम डेफिनेटली दे केम अप विद दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ 75%। उसके पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। उसके पहले तो ये होता था कि एक पूरा पूल कैंपस होता था, सारे ही स्टूडेंट्स को बुला लेते थे। एक कैंपस का मुझे याद है जहाँ पर 600 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे, एक साथ मतलब स्लॉट्स में। 600 स्टूडेंट्स का लेकिन सेम डे पर टेस्ट कंडक्ट हुआ था, और उन 600 में से करीब करीब 25 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट क्लियर किया था। राइट। तो आप सिलेक्शन रेट अगर देखते हो टेस्ट क्लियर करने का, तो केवल 4 से 5%, 4 to 5% पीपल वर एबल टू क्लियर दैट टेस्ट। डेफिनेटली इट इज दैट डिफिकल्ट। ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में का फॉर्मेट क्या होता है? तो इस टेस्ट का फॉर्मेट 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स ये भी हो सकता है, 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स ये भी हो सकता है। राइट। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स ये भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट ये अभी तक के पास्ट ट्रेंड रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट में मैंने देखा है पिछले 2 सालों में, वो ये देखा है 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोगों को अपने आप को स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना है। आरसीएम के लिए जाना मतलब काफी प्रैक्टिस करने वाली बात है। नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपके इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग को इसमें ये टेस्ट इस तरह का रहता है। इसका जो ब्रेकअप है, राइट, वो ब्रेकअप क्या है? इसमें आते हैं 20 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स, और 10 क्वेश्चंस ऑन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। राइट। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, एंड 20 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स कॉलेज में कवर होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कॉलेज में पूरी तरह से कवर नहीं हो पाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज में। लेकिन क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके आए हो, कॉलेज अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो इतना फास्ट पॉसिबल नहीं होता है कि कॉलेज में ये कवरेज हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको इसका, हम लोगों ने एक मटेरियल प्रिपेयर करा है। ठीक है। मैं आई जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके मुझे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। देखो, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, ये हमने पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे पिक किया है। ओके। और पास्ट ट्रेंड 70% टाइम रिपीट होता है। राइट। 30% क्वेश्चन हमेशा कुछ अलग तरह के आते हैं, लेकिन 70% टाइम आप मान के चल सकते हो कि इट इज गेटिंग रिपीटेड। ठीक है। what it has covered, right? So it is covering specifically for RCM, right? It has 7 modules, right? 7 modules is these 7 modules: FM, derivatives, portfolio, finance, capital market, valuation and equity research, bond valuation, economics, MS Excel, and like this, right? तो मैं इसके टॉपिक्स भी एक बार आपको बता देता हूँ। राइट। सो इसके जो टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ऑल बेसिक्स, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, राइट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एजम्पशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज, राइट? अकाउंटिंग टर्म्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग और स्पेशल ट्रांजेक्शंस। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में लिटिल बिट अबाउट कॉस्ट शीट, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है वैसे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राइट। सो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इनका फेवरेट टॉपिक होता है। इंटरव्यू हो या फिर
टेस्ट हो, राइट, दोनों ही केस में इट्स देयर फेवरेट टॉपिक, राइट। तो इसको तो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अबाउट रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर ये टॉपिक्स आ जाते हैं। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट बॉन्ड वैल्यूएशन, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बॉन्ड वैल्यूएशंस के ऊपर, सो अगेन दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कवर। मॉड्यूल 5 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स, राइट, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन एंड इक्विटी रिसर्च, this is again important, and economics, right? Economics was a surprising topic that was asked in the year, right? अभी तक इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। पूछे जाते थे तो थोड़ा जनरल नॉलेज के फॉर्म में पूछे जाते थे, लेकिन दिस टाइम दे कवर्ड some very theoretical question also on economics, right? So that's why we have included that also in this particular module, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस है फॉर आरसीएम। आपको आरसीएम के लिए डेफिनेटली सबसे ज्यादा तैयारी लगेगी, और मेरा मानना ये है कि आप लोग अभी से ही उसको तैयार करो। अगर आपको पता ही है कि विद इन अ वीक और 10 डेज कंपनी आ सकती है, तो ठीक है। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे कि इतने जल्दी हम लोग क्या इसको कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरह के आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, ओके। हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कवरेज किया हुआ है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। सो आई लिटिल बिट टॉक अबाउट दैट, एंड देन आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखे हैं पास्ट में, उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इसके केस में लेते हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड if you go onto our website, that is camprep.com, so you will find that there is a specific section for finance people, right? MBA finance, okay. So in this one, you will find that we have prepared very specific plans for MBA finance people, right? It's kind of a 35-hour session, राइट। जब हम क्लासेस रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते हैं, हमारी जो फर्स्ट बैच हुई थी दैट वाज इन द मंथ ऑफ मई, तब हमने इसको 1 आवर अ डे रखा था। सो इट टुक ऑलमोस्ट 35 डेज टू कंप्लीट दैट। लेकिन अभी हम लोग जो सेशंस कर रहे हैं वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं। सो अभी लास्ट हमारी बैच हुई थी 14 डेज की, एंड अब हमारी जो नेक्स्ट बैच आएगी दैट विल बी वेरी कैप्सूल बैच, एंड दैट इज फॉर 7 डेज, राइट। So, in this one, what do we cover? We cover specific to these companies which normally participates, right? Which all these companies are there? Arcesium, Deloitte, S&P Global, right? Or company specific preparation, whether it is for Big Four, whether it is for consultancy, whether it is for equity research, techno finance role, corporate finance role, banking role, investment banking और fund accounting, right? सभी तरह की कंपनीज का डेटा जो पास्ट में जिस तरह से कवर किया गया है इंटरव्यूज में, हमने उसको कवर करा है, और वी हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रोग्राम। कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमको अभी टाइम कम है, और इस कम टाइम में वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड लाइव सेशंस। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास इंक्वायरीज आई थी, जो चाह रहे थे कि दे विल गेट दी रिकॉर्डिंग्स ओनली, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन फॉर देम इज दैट वी हैव prepared a very specific recording also of all these lectures, right? जिन लोगों के पास टाइम कम है और वो फिर भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो they can watch these lectures. These lectures are around 30 hours lecture. 30 hours में you will get most of the things, right? उसके जो details हैं, right? These are the details of these 35 hours lectures, where it covers technical sessions. हम लोगों का जो खास focus होता है वो technical sessions के ऊपर होता है।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन, वैल्यूएशन। अच्छा, इसमें जो कवरेज करने का वे होता है वो ये होता है कि हम लोग केवल और केवल जो पास्ट के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं खास तौर पे उनको कवर करते हैं, ताकि आपकी बहुत ही ज्यादा कट टू कट और स्पेसिफिक प्रिपरेशंस हो, राइट। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, डेलोइट के जो टेस्ट होते हैं, वर्सन टेस्ट, एक्सेल टेस्ट, बीपीटी टेस्ट। उसके अलावा इंटरव्यूज से रिलेटेड एचआर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, जीके सेशंस, राइट। So it's a basically a comprehensive preparation about every company that you will be appearing in the campus. Okay. And not only this one, definitely we have additional sessions also where we will give a refresher session. हर कंपनी पहले हम लोग refresher sessions देते हैं, काफी सारे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। इन सभी सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग्स होती है जो आप कभी भी देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल होता है, यू कैन हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल दैट इज देयर। प्लेसमेंट असिस्टेंस, कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अगर लार्ज कैंपस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट, अगर कैंपस में नहीं हो पाता है, ठीक है, ये एक रिस्क हमेशा रहती है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों की जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, उस एल्यूमनाई नेटवर्क में हम उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर देयर। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उनको भी देखिएगा, ठीक है। अभी स्पेसिफिक टू, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमको केवल और केवल अभी एक ही कंपनी की तैयारी करनी है, राइट, ओनली फॉर डेलोइट और ओनली फॉर आरसीएम या फिर और कोई कंपनी। तो दैट ऑप्शन इज आल्सो देयर। अगर आपको सारी ही कंपनीज की तैयारी नहीं करनी है एंड राइट नाउ यू आर टारगेटिंग लेट्स से ओनली डेलोइट, राइट, सो दैट ऑप्शन इज आल्सो देयर। यू कैन ओनली एंड ओनली प्रिपेयर फॉर डेलोइट। डेलोइट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल आउट कर देता हूँ। डेलोइट में जैसे कि टेस्ट, वर्सन टेस्ट होता है, सो वी हैव आवर ऑन इन हाउस एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो वहां पर आपको स्कोर भी मिलेगा। अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हो तो यूट्यूब पे हमको स्कोर्स जनरली नहीं मिलते, तो इस टेस्ट, इस पर्टिकुलर ऐप पर आपको स्कोर भी साथ में मिल जाएगा, तो आपको फीडबैक भी इजी हो जाएगा, आपको अपनी पता चल जाएगा कि आप कितने प्रॉपर वे में कर रहे हैं। एडिशनल टेस्ट जो भी है, राइट, यू कैन गेट अ टेस्ट, थ्री सेट ऑफ थ्री टेस्ट, फाइव टेस्ट, 10 टेस्ट, जितने भी आपको टेस्ट चाहिए यहाँ पर यू विल गेट दैट। बीपीटी और एक्सेल टेस्ट, बीपीटी और एक्सेल को प्रैक्टिस करना है तो दोस टेस्ट आर देयर। वीडियो लेक्चर्स, जैसा मैंने आपको बताया, वी विल प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर्स एंड आल्सो स्टडी मटेरियल, राइट। सो आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई डिस्प्ले यू फॉर डेलोइट, राइट, तो डेलोइट के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट, तो you will get a detailed study material for Deloitte, right? So जैसे कि like you will get a material like this, ठीक है। तो ये जो 40 पेजर मटेरियल है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पूरा केवल डेलोइट को ध्यान में रख के ही ये पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाया गया है, राइट। तो क्योंकि डेलोइट में लास्ट टाइम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस तरह के ट्रांजेक्शंस को भी उन्होंने कवर किया था, राइट। तो वी हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर पोर्शंस आल्सो इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, ठीक है। सो वी हैव been conducting these sessions for last many years, and I personally believe that a guided preparation definitely helps you a lot, right? So इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे और मॉक इंटरव्यूज एंड करियर गाइडेंस दैट इज देयर, राइट। Okay, so this is primarily about the preparations that you can do using our program, right? और इसके अंदर लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट भी बता दूंगा, राइट, ताकि आप लोगों को थोड़ा मजा भी आए, ठीक है। तो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का वो एक रहता है कि हम लोग को करना है, और बट उसमें स्पेशल प्राइसिंग को लेके एक पॉइंट है, राइट, दैट I have discussed with the team, and they have given us option, so I'll share those option with you, ठीक है। All right, so now अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट
पोर्शन पर, एंड दैट लास्ट पोर्शन इज नथिंग बट अ टेस्ट, राइट? आप लोग का एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं, और इस टेस्ट में लेट्स सी हु आर एबल टू आंसर। ओके, सो जो भी इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है, दे विल गेट द प्राइज दैट इज देयर फॉर द सेशन। ठीक है, उन लोगों को और स्पेशल प्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग रेडी हो? करें हम लोग डिस्कशन? शुड वी टेक सम टेक्निकल क्वेश्चंस? बोलिए। राइट, सब लोग अपने अपने माइक्स और अपने अपने चैट बॉक्स रेडी रखिए। राइट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको बोलूंगा आपको अनम्यूट करके आंसर देना है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से, दैट यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। राइट, तो प्रोसेस ये रहेगी कि पहले आप बोलोगे दैट आई वुड लाइक टू आंसर, आई वुड लाइक टू आंसर। जो भी बोलेंगे कि लाइक आई वुड लाइक टू आंसर, उनसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस में आपको अपना माइक अनम्यूट करना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर कंप्यूटिंग डेट इक्विटी रेशियो विल यू इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स? ठीक है, जो भी आंसर देना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट करें एंड टेल मी दैट यू वुड लाइक टू आंसर। Sir, I would like to answer. यस इशिका, बताइए। Yes, sir, we generally include the preference share when we compute the debt to equity ratio. As we all know that companies, like a component of the company's total equity shares, so the debt and equity share is calculated by dividing a company's total debt by its total shareholders equity, and preference share capital is added to the equity share capital. All right, very good answer. Yes, good job. ओके, वेल डन इशिका, वेरी गुड आंसर एंड वेरी एलॉबरेटेड आंसर। राइट, सो जब डेट इक्विटी रेशियो हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो जो इक्विटी का पोर्शन होता है जो डिनोमिनेटर में हम लेते हैं, उसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करते हैं। वेल डन। ओके, और आगे चलते हैं। Being a profitable company, which one is a cost-effective source of finance, debt or equity? राइट, अगेन जो भी आंसर देना चाहते हैं, और कोशिश करें दूसरे स्टूडेंट्स भी आंसर करें। यू हैव ऑलरेडी गिवन इशिका वन। एनीवन एल्स? Answer. हाँ वीना, बोलिए। Sir, we prefer debt equity because to bring debt, it is less expensive than the equity because when we issue equity shares holders, we have a liability to ensure their shareholders, matlab, their shares are safe in safe hands. Shares are in safe hands, what it means? So that means mostly the shareholders are concerned with the share values, and they expect return in long term, but that share when we bring corporates from debt, it is less expensive as compared to equities. All right. Okay, okay, okay. All right. So your answer is right, but definitely, whenever you appear for any interview, right, my suggestion to you is that please focus on expressions, right? Explanations and expressions, right? So your answer is definitely right. Well done. The answer is simple, right? The answer is that equity compared to equity, debt is always a cheaper source of finance, and reason is that because equity holders take a higher risk. That's why the cost of equity is always higher than the cost of debt, right? तो आपको क्लियर वे में उसको उनको बताना रहेगा, right? So that's what is required in interviews.
All right. So this is question number two. Let's take some more. Banks and NBFC, right? What is the biggest and major difference between bank and NBFC? Yes, anyone? What is the biggest and major difference between bank and NBFC? So may I answer? Yes, please. So banks generally accept deposits from the public and lend loans to the people. NBFC is termed as non-banking financial institution. They perform on lending loans to the people, but they do not generally accept deposits from them. Their way of making money and profits into the business is by charging other kinds of fees by lending some other additional services of consulting or advisory. मतलब हाफ ऑफ द आंसर इज राइट, ठीक है। हाफ ऑफ द आंसर इज राइट बिकॉज यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बैंक्स कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, एनबीएफसी कैन नॉट। दोनों का जो लैंडिंग मॉडल है वो सिमिलर है, दोनों ही लैंड करके पैसा कमाते हैं, लेकिन जो पैसा है बेसिकली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो दे बोथ वन कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स एंड वन कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। ये मैं क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? तीनों क्वेश्चंस को समझो एक बार अच्छे से। क्योंकि केवल और केवल आंसर्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे समझना है, इंटेंट समझना है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन आपको डेलोइट में भी पूछा जा सकता है और आरसीएम में भी पूछा जा सकता है। और केवल ये बात नहीं है, दे हैव बीन आस्क्ड, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए इन द पास्ट। एसएनपी ग्लोबल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जो टॉपिक की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, वो टॉपिक की लिस्ट में जब हमने बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो इसको कवर करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हमने डेट इक्विटी के बारे में बात करी। इक्विटी रिसर्च कंपनीज, स्टार्टअप फाइनेंसिंग कंपनीज, डेसिमल पॉइंट, एक्सेल डायनामिक्स, एसएनपी ग्लोबल। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में डिस्कस हुआ था काफी देर तक इन केस ऑफ आरसीएम। सो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी उन कंपनीज के लिए जरूरी होती है, ठीक है। बैंक्स एंड एनबीएफसी, क्योंकि काफी बैंक्स और एनबीएफसी पार्टिसिपेट करती है कैंपस में, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे बंधन बैंक, राइट? इन द पास्ट और भी बहुत सारी बैंक्स आती हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके एंगल से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ ए इज 3 एंड बी इज 4, विच वन आउट ऑफ दीज टू इज बेटर? इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, राइट? तो यस, एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस? इतना टाइम अगर लगाओगे आप, तो इसका मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ठीक है? और वो सही नहीं है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है? इतना टाइम नहीं लेना है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप लोग क्या करते हो, रेशियोज को याद कर लेते हो, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन और उसके यूज नहीं समझ पाते हो। ये मैं अपनी क्लास में भी देखता हूँ, ये प्रॉब्लम होती है। अभी तक हम लोगों ने 3 बैचेस कंप्लीट कर लिए हैं कैंपस की। फर्स्ट बैच हमारी मई में स्टार्ट हुई थी, सेकंड बैच जुलाई में स्टार्ट हुई थी, और थर्ड बैच हमने अभी रिसेंटली, अभी चल रही है वो बैच, राइट? तो हर बैच में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली बात क्लियर होती है, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो इसका आंसर है बेसिकली डेटा टर्नओवर रेशियो ऑफ 4। जितना हायर टर्नओवर होगा उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ फास्टर रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। इसको याद करने का सिंपल तरीका याद रखिएगा, इसको 365 से डिवाइड कर लो। 365 by 3 and 365 by 4. 365 by 4 will be somewhere around 92 days approximately, and 365 by 3 will be around 120 days. So recovery in 90 days will be obviously better than 120 days. तो ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर रेशो का, ठीक है?
what is the formula that is used for computing cost of equity? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? एनीवन? Sir, may I? हाँ बोलिए. So the next year dividend divided by the current stock price plus the dividend growth rate. वेरी गुड, फैंटास्टिक. और कोई आंसर इसके अलावा? दिस इज वन आंसर. ये वो कंपनीज हैं जो डिविडेंड पे कर रही है, राइट? जो कंपनीज डिविडेंड पे नहीं कर रही है उनके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाएगी? I would like to answer. यस प्रिंस, बोलिए. Dividend upon my current market price into 100 plus growth rate. राइट, दैट इज देयर. इसके अलावा और कोई कंपनी जो आंसर, जो कंपनीज डिविडेंड पे नहीं कर रही है? So it is. All right. Okay, good try, Prince. Basically, it is CAPM model. CAPM मॉडल आपने पढ़ा होगा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. तो ये वो मॉडल है जो यूज होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए. अगर आपके पास आप किसी भी कंपनी की बात करो, राइट, भले ही वो लॉस मेकिंग हो, भले वो डिविडेंड पे कर रही हो, डिविडेंड नहीं पे कर रही है, राइट. तो देखो, मेरा कहीं ना कहीं ये मेरा थॉट है, और बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट आई हैव रिसीव्ड, कि स्टूडेंट्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव्स और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये क्लैरिटी नहीं होती है, और ये ही टॉपिक्स आपसे आरसीएम में पूछे जाते हैं. तो आरसीएम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करो, राइट. डोंट वेट कि हमको कॉलेज में पहले पढ़ाएंगे उसके बाद हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. आपको ही ये प्रिपेयर करके रखना होगा इन एडवांस, ठीक है. दूसरी बात ये है कि ये टॉपिक्स केवल और केवल आरसीएम के लिए जरूरी नहीं है. अगर इक्विटी रिसर्च के रोल्स की भी बात की जाए तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप लोग अगर इक्विटी रिसर्च के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है ना. तो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, राइट. सो बट यस, हाफ ऑफ योर आंसर इज राइट. दो मॉडल होते हैं, एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है जो आपने बताया अभी, D1 अपॉन P0 प्लस G, और दूसरा जो आंसर है दैट इज CAPM मॉडल, ठीक है. ऑल राइट, गुड जॉब बोथ ऑफ यू. व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजंस, राइट. तो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये कि if you are if there is a fire that broke out in your factory, right? एक बिजनेस में फैक्ट्री में फायर से जो स्टॉक है वो स्टॉक डैमेज हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने कर दिया है, लेकिन वो उनको मिला नहीं है अभी तक, ठीक है. तो इस तरह के लॉस के लिए अब आप प्रोविजंस बनाओगे या उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाओगे, ठीक है. एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. एक फैक्ट्री है जिसमें फायर लग जाती है, जहां पर स्टॉक्स डैमेज हो जाता है, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करती है, और वो क्लेम अभी के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ऐसे केस में हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे या कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, राइट. सो एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? Sir, may I answer? यस प्लीज. So, contingent liability will be created here because the outcome of an obligation is decided upon the happening of some uncertain future event. The company may get the claim or may not get the claim. So, if that outcome is uncertain, so we'll treat it as contingent liability. ऑल राइट, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड आंसर, ठीक है. सो परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने, क्योंकि जो इवेंट है, राइट, the claim may they get or they may not get it, right. That's based on uncertainty. There is an uncertainty to that, and if there is an uncertainty, तो ये जो लॉस है हम मान के भी नहीं चल सकते कि हमको लॉस हो गया है, और ये भी नहीं मान सकते हैं कि लॉस नहीं हुआ है. तो जब अनसर्टेनिटी रहती है तब हम कंटिजेंट लायबिलिटी बनाते हैं.
अगर ये एक बार क्लियर हो जाएगा कि हमको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे केस में प्रोविजंस बुक करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये सभी ही कंपनी के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व, राइट। तो ये याद रख के जाइएगा, राइट, खास तौर पे प्रोविजंस, राइट, प्रोविजन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्निकल इंटरव्यूज, राइट। सो टेक्निकल इंटरव्यूज की क्लैरिटी आई आपको, ठीक है। टैक्स के भी क्वेश्चन डेलोइट के अंदर अगर हम बात करें तो ये सब, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्पेसिफिकली टैक्स के क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं, तो इनको आप एक बार रिकॉल कर सकते हो। करंट टैक्स स्लैब्स कितनी है अभी, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस टैक्स से रिलेटेड पूछे गए। अकाउंटिंग के तो ऑब्वियसली जो रेगुलर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जर्नल एंट्रीज को वो नॉर्मली कवर करते हैं, ठीक है। राइट, सेशंस के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दे दी है, राइट, कि सेशंस हम लोग के कैसे रहते हैं। अभी तो इसके बारे में हाँ, राइट, सो सेशंस के बारे में हमने ब्रॉडली बात कर ली है। अभी इस पूरे सेशन को अगर मैं समराइज करता हूँ, राइट, सो इसको समराइज करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो टाइम है डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम बचा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट बैच मई में स्टार्ट हुई थी, राइट। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इतने एडवांस में तैयारी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज आप लोगों के पास भी मौका है। जो भी लास्ट मोमेंट पे भी कई लोग सेंचुरी बना देते हैं, राइट। तो इस मौके को आप लोग पूरा यूज करो, ओके, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इसकी तैयारी करो, ठीक है। दूसरा, कैंपस में कंपनी स्पेसिफिक तैयारी करें। जैसे अब आपको पता है कि अगर डेलोइट के फॉर्म्स फिल हो गए हैं, आरसीएम के फॉर्म फिल हो गए, तो पहले उन कंपनीज को अच्छे से टारगेट करो, ठीक है। उन्हीं कंपनीज के लिए ज्यादा फोकस करके तैयारी करिए, उनके राउंड्स को समझिए कि इनके राउंड्स हो रहे हैं, हमको कितना कंफर्ट है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स एंड टेस्ट, राइट। तो वर्ड्स एंड टेस्ट, जैसा मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप यूट्यूब से तो कर ही सकते हो, साथ में हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे फर्स्ट टेस्ट फ्री है, तो उस फ्री टेस्ट को यूज कर लो। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस समझ आएगी, क्या राउंड होता है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप ऑल्सो। तो ये वाली जो तैयारी है ये आप लोग करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, राइट, फॉर वर्ड्स एंड डेरिवेटिव्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं अभी, उनको क्विकली पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। और वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट, ये भी एक पार्ट है जो हम लोग नहीं पढ़ते, और ये भी हमको कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट के साथ मैं अभी अपनी तरफ से बात खत्म कर रहा हूँ। बट ये सेशंस और इंफॉर्मेटिव सेशंस आगे भी चलते रहेंगे, वी विल कीप ऑन कंडक्टिंग इंफॉर्मेटिव सेशंस फॉर यू। तो आप लोग डेफिनेटली कोशिश करें, ग्रुप पे बने रहो, ग्रुप पे भी हम लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करो। कोई सेशंस हो रहे हैं, एक्सपर्ट सेशंस, उसमें भी आप लोग आओ। और वी विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम आरसीएम, वी विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम डेलॉइट, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग भी कवर करेंगे उसके अंदर, राइट। सो आई हैव वी हैव डिस्कस विद द टीम, एंड दे हैव फॉर द all the pricing, right, that is there right now, okay. So on the pricing, they have offered a discount of 35%, right, but that is there only till today, right. This is kind of a month end, and activities which are there, all right. So 35% उन्होंने, this is applicable for all the
रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, जितने भी सेशंस स्टूडेंट्स अभी लास्ट मोमेंट पर रिकॉर्डिंग्स को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, सो आप को जो कूपन कोड है, राइट, दैट विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप, बट दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर टुडे। इसके बाद ये लैप्स हो जाएगा। उसके बाद जो रेगुलर प्राइसिंग है वो रेगुलर प्राइसिंग रहेगी। तो आप लोगों को अगर अवेल करना है तो इसको लास्ट डे ऑफ द मंथ की तरह इसको प्रॉपरली आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, आगे जो हमारे लाइव सेशंस अगर प्लान होते हैं, and why I'm saying if it gets planned, because you know that if we have to plan, it will be a 7 days of crash batch, right? तो जो क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है लाइव बैच के लिए भी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान करा है 7 days ऑफ दिस कैप्सूल बैच। ठीक है, बट इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स रहेगा, राइट? डेली इट विल बी 2.5 आवर्स। ठीक है, तो तभी जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा इन जस्ट 7 days। तो वो अभी आवर टीम इज प्लानिंग एंड वी विल बी एंड ऑफ कोर्स इट विल बी एन ऑनलाइन सेशन। ठीक है, तो अगर ये प्लान सेट होता है तो वी विल एंड दिस विल बी अ लाइव बैच, राइट? अगर आप लोगों को लाइव बैच अटेंड करने का रहेगा तो बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ने लाइव बैच के लिए भी कहा था, तो वो ये अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जल्दी है और उनको ये है कि नहीं अभी हमको अ, किसी भी मोमेंट पे अगर कंपनी आ जाएगी तो उस केस में वी हैव टू बी रेडी इन एडवांस। ठीक है, तो फिर उस केस में डेफिनेटली द राइट वे इज टू स्टार्ट विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? अच्छा, जो लोग रिकॉर्डेड ले रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। डेफिनेटली हम लोगों का फुल सपोर्ट रहता है। मेरा डायरेक्ट नंबर रहता है, किसी भी मोमेंट पे कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कॉल अस एंड कॉल मी डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मैं अगर बात करता हूँ तो यू विल गेट दीज लेक्चर्स, राइट? इट कवर्स डेलोइट बिग फोर वर्ड्स एंड टेस्ट टेक्निक्स। डेलोइट में जो वर्ड्स एंड टेस्ट में टेक्निक्स लगती हैं वो है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटेंसी पार्ट 2, पार्ट 3। ये सारे क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस हैं जो डेलोइट में पहले पूछे गए हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन के 2 लेक्चर्स हैं जो इंटरव्यूज में आपको हेल्प करते हैं। रेशियो एनालिसिस, राइट, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। कई लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वी हैव कवर्ड दैट इन 2 लेक्चर्स। डेरिवेटिव्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डेरिवेटिव्स के ऑलमोस्ट 5 आवर्स के लेक्चर्स हैं। उसके बाद बॉन्ड्स की बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 3 लेक्चर्स हैं। कैसे अपना रेज्यूमे बनाना है उसके ऊपर है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंटर्नशिप कैसे प्रेजेंट करनी है, एचआर के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, राइट? तो और इसी में अभी एक्सेल के लेक्चर्स भी ऐड हो जाएंगे। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ऑल द लेक्चर्स, राइट? तो अगर आपको है कि मुझे फास्ट ट्रैक पे सब कुछ प्रिपेयर करना है यूजिंग द रिकॉर्डिंग, राइट, तो आप रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो, राइट? तो इन रिकॉर्डिंग को यूज करिए। वर्ड्स एंड टेस्ट के लिए जैसा मैंने आपको बताया, हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन पर जाओ और एप्लीकेशन के लिंक भी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइक हाउ इट लुक्स। सो ये केवल और केवल खास तौर पर डेलॉइट के लिए ज्यादा करके फोकस करके बनाई गई। ठीक है, तो इसमें जो राउंड्स भी आपको दिखेंगे, ठीक है, तो जो राउंड्स भी इसमें मेंशन है वो भी आपको डेलॉइट के हिसाब से ही दिखेंगे राउंड्स, राइट? सो रीडिंग द स्टेटमेंट, रिपीटिंग शॉर्ट आंसर्स, बिल्ड द सेंटेंस, स्टोरी रीटेलिंग एंड ओपन क्वेश्चंस, राइट? तो ये सारी चीजें आपको डेलॉइट के हिसाब से ही ज्यादा करके मिल रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेस्ट है, डेमो टेस्ट है, उसकी लिंक आई विल शेयर, आप लोग उसको अपियर कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो ये है। इसके अलावा आपको टेस्ट, जो प्रैक्टिस टेस्ट है, काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट देने रहेंगे।
तो उसमें बीपीटी के टेस्ट रहेंगे, डेरिवेटिव के टेस्ट रहेंगे. सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट, राइट. ऑलमोस्ट 25 टेस्ट आर देयर. तो उन सभी टेस्ट को अभी से देना आप स्टार्ट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, राइट. तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. वी विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो इन द ग्रुप, ठीक है. बावजूद उसके अगर आपको लगता है कि नहीं हमको आपसे मिलना है और फेस टू फेस डिस्कशन करना है पर्सनली, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू मीट मी इन द ऑफिस ऑल्सो, राइट. आवर ऑफिस इज एट सत्य साई स्क्वायर एट इंदौर, राइट. तो जब भी आप आने का प्लान कर रहे हो तो गिव अ कॉल बिफोर हैंड. डायरेक्टली ऑफिस मत जाइएगा बिकॉज मेरा काफी ट्रैवल रहता है. तो ऐसे केस में आप लोग पहले कॉल करिएगा ऑफिस पे, उसके बाद ऑफिस विजिट करिएगा, राइट. तो अगर आपको कोई फेस टू फेस डिस्कशन करना है तो यू कैन कम फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है. So this is all from my side for today's session. Yes, if you people have any further question, definitely the session is now open for any kind of questions. Yeah, if you people have any question, yes, आप लोग unmute कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Are there any package of recorded lectures for Arcesium and Deloitte? Right, ये जो lectures मैंने अभी आपको दिखाए ये basically Deloitte और Arcesium के लिए ही पैकेज है, राइट. जिसमें दोनों के लेक्चर्स हैं. इसमें अगर आप देखते हो Deloitte के जो टॉपिक्स हैं वो भी पूरे कवर हो रहे हैं और Arcesium के भी सारे ही जो टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, वैल्यूएशंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये पूरा Arcesium के लिए भी कवर हो रहा है, ठीक है ना. सो दैट वे, ओके. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यस प्लीज टेल मी. ओके, all right, great, everyone. Fantastic. I hope that you got certain insights from today's session. Uh, keep checking the WhatsApp group. We will be posting certain updates, certain videos, certain seminar links, right? Definitely try to attend those ones. Okay. So I wish you all the best for your upcoming campus and whatever is required and any help is required from our side to let me know. Okay. जो लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिए. ऑल द अपडेट्स विल बी शेयर्ड फ्रॉम दैट. ओके. अच्छा, फिर भी आप में से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के 1-to-1 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है. सो इस मीटिंग में आप लोग रुक जाइए, राइट. 2 मिनट का एक पॉज लेंगे और उस पॉज के बाद जिनके भी 1-to-1 क्वेश्चन हो, राइट, वो लोग खासतौर पर रुक जाइए, ठीक है. सो हम लोग 2 मिनट के बाद फिर से उनके 1-to-1 क्वेश्चन ले लेंगे. All right, thank you very much once again. Bye bye.